قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 6، جس کا عنوان ہے لیوی اسٹراس اور ساختیاتی بشریات۔ 18ویں صدی سے اساطیر کی اہمیت کم ہونے لگی تھی۔ دنیا بھر میں تصوف، سوریت، مسٹسزم، صوفیانہ افکار اور اساطیری فکر کا زور کم ہونے لگا۔ عقلیت پسندی، روشن خیالی اور سماجی علوم کا چرچا بڑھنے لگا۔ بطلیموس کا نظریہ 1400 سال کے بعد باطل ٹھہرا اور کوپرنیکس نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین ساکن نہیں ہے اور روزانہ ایک بار اپنے محور پر اور سال میں ایک مرتبہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کیپلر کے دونوں قانون رائج ہو گئے۔ پہلے قانون کا مطلب یہ تھا کہ سیاروں کے محور گول نہیں بیضوی ہیں اور ان کا ایک رخ سورج کی طرف ہے۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ سیاروں کی رفتار سورج سے قربت اور دوری کی بنیاد پر بدلتی رہتی ہے۔ طبعی دنیا ہی میں نہیں، فرد اور معاشرے کے بارے میں انسانی علوم میں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ معاشیات، نفسیات اور عمرانیات میں بڑی پیش رفت ہوئی۔ نفسیات میں فرائڈ اور یونگ، ساختیات میں سوسیئر اور علم البشریات میں ٹیلر، فریزر اور درخیم کے بعد لیوی اسٹراس نے اس پیش رفت میں حصہ لیا۔ لیوی اسٹراس سے زیادہ شہرت کسی ماہر عمرانیات کو نہیں ملی، لیکن کسی ماہر علم بشریات کی فکر بھی اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی لیوی اسٹراس کی فکر۔ اس شہرت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے اساطیر پر بہت گہرا کام کیا ہے۔ اس نے سوسیئر کی ساختیات کا اطلاق علم البشریات پر کیا۔ لیوی اسٹراس نے اساطیر کے علاوہ رسوم و رواج، تہوار اور خور و نوش کے بارے میں بھی اپنے افکار کو مرتب کیا۔ دراصل لیوی اسٹراس نے اساطیر کے بارے میں جدید ذہن کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ ایک جدلیاتی طرز فکر کا مفکر ہے، یعنی شروع میں وہ جو ایک پوزیشن اختیار کرتا ہے اسے آگے جا کر خود ہی رد کر دیتا ہے۔ اس کی تحریر کا خلاصہ پیش کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس کا حوالہ دینا بھی آسان نہیں۔ وہ فرانسیسی مزاج کی ادائیت سے کام لیتا ہے جس کے پیچھے ایک طنزیہ جھلک بھی نظر آتی رہتی ہے۔ لیوی اسٹراس کی جدلیات میں استہزائیہ جملے بھی ہوتے ہیں، مذاق بھی ہوتا ہے اور ایسا سیدھا سادہ انداز بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی طنزیہ مسکراہٹ بھی جھلکتی رہتی ہے۔ اس طنزیہ مسکراہٹ میں میلیشیس مسکراہٹ کا انداز ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دلیل کی قوت کو اپنے خیال ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ مخاطب پر اپنی فوقیت جتانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامعین اس کی مخالفت کریں اور اس طرح وہ انہیں موضوع کی فکر انگیز الجھنوں میں گھسیٹ کر لے آئے۔ تو آئیے آج ہم اپنی گفتگو درمیان ہی سے شروع کر دیتے ہیں، یعنی ٹرسٹس ٹراپیکس سے۔ یہ کتاب علم بشریات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایک ماہر بشریات کی سوانح حیات ہے، انٹیلیکچوئل سوانح حیات۔ اس کتاب کا مرکزی حصہ بشریات کے سلسلے میں فیلڈ ورک کے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا بیان تاریخ وار نہیں ہے، یعنی کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، بلکہ مصنف مجموعی طور پر اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے۔ کبھی آگے کے واقعات بیان کرتا ہے، کبھی ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو گزر چکے ہیں۔ وہ وسطی برازیل کے سفر کا حال بیان کر رہا ہے۔ یہ سفر اس نے مقامی باشندوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کیا تھا۔ کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے یہ فیلڈ ورک پسند نہیں ہے، چنانچہ اپنے اس تحقیقی سفر میں اس نے اپنے موضوع یعنی نسلی جغرافیہ کے بارے میں کم سے کم تحقیقات کی ہیں۔ وہ ان دیسی لوگوں کی زبان سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ اتنی دیر ٹھہرتا ہے کہ ان کے کلچر کا بنظر غیر مطالعہ کر سکے۔ وہ وحشی اقوام سے دور ہی رہتا ہے۔ لیوی اسٹراس کو یہ شدید احساس رہتا ہے کہ فرانسیسی وہ پہلی قوم ہے جس نے دوسری قوموں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ فرانسیسیوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ فرانسیسی وہ پہلی قوم ہے جو دوسروں کی نگاہ سے اپنا مطالعہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک استثناء ہیں جو مختلف قوموں کے کلچر میں دلچسپی رکھتے ہیں، چونکہ ہمیں بنیادی طور پر کلچر میں دلچسپی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ متمدن زندگی کا حاصل کیا ہے۔ ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلچر کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ مختلف کلچروں کے تصادم میں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کلچر میں دلچسپی لینا ہی کلچر کے مسئلے کا واحد حل ہے۔ لیوی اسٹراس نے فرانسیسیوں کے سلسلے میں کہا ہے کہ ہمارے اپنے کلچر سے بہت زیادہ دلچسپی نہ رکھنا ہی ہمیں کلچر کے سلسلے میں تعصبات سے آزاد ہونے میں مدد دے گا، اور اس کی وجہ سے
ये इम्कान पैदा हो जाता है कि हम एक समझ में आने वाली हकीकत से दिलचस्पी ले सकें और इस तरह हम तारीख में पहली बार नेचर से मुताबिकत पैदा कर सकेंगे और इस तरह हमारी ज़िंदगी की बुनियाद माकूल हकीकतों पर रखी जा सकेगी। लेवी स्ट्रॉस कहता है कि इस तरह से हमारे ख्याल में माहिर बशरियात ही जदीद ज़माने का हीरो है, गोया खुद लेवी स्ट्रॉस ही अपने आप को जदीद ज़माने का हीरो समझता है। लेवी स्ट्रॉस कहता है कि ट्रिस्टीज ट्रॉपिकीज ही वो वाहिद किताब है जिससे बेहतर किताब कोई माहिर बशरियात कभी लिख नहीं सका है। हालांकि हकीकत ये है कि लेवी स्ट्रॉस की असल साख्तियाती बशरियात के नज़रियात जिन किताबों से ज़ाहिर होते हैं, इनमें दो किस्म की किताबें हैं। एक तो वो किताबें हैं जिनमें क़राबतदारी और टोटेज़म के मसाइल हैं। टोटेज़म से मुराद वो तशख़्ख़ुस है जो मुख्तलिफ़ वहशी कौमें किसी पौधे या जानवर को निशान या कौमी तशख़्ख़ुस समझकर अपना लेती हैं, जैसे शुमाल मगरबी अमरीका के किसी कबीले ने किसी हैवान या पौधे वगैरह को अपनी किसी बातनी ताल्लुक़ की वजह से अपना निशान बना लिया हो या इसको तशख़्ख़ुस के लिए अपनी अलामत बना लिया हो। टोटोइज़म के अलावा रसूम व रिवाज, त्यौहार और खुरनोश के मसाइल हैं। दूसरी किस्म की किताबें वो हैं जिनमें असातीर का मुताला किया, यानी असातीरी कहानियों के सिस्टम का मुताला, और सिर्फ असातीर के सिस्टम का ही नहीं बल्कि क़राबतदारी के सिस्टम का भी, और इनमें से हर एक सिस्टम की इकाइयों के बाहमी राब्ते को दरियाफ़्त करने की भी कोशिश है। जब हम असातीरी कहानियों की अलामती अनासिर का तज्जिया करते हैं तो ये समझते हैं कि ये मुतय्यन अलामतें हैं और ये कि इनकी एक से ज़्यादा ताबीरें मुमकिन हैं, लेकिन लेवी स्ट्रॉस ये बताता है कि असल सूरत यह है कि अस्तूर में जब कोई अलामत आती है तो अस्तूर में इसके मकाम के मुताबिक मायने मुतय्यन होते हैं और ख़ुद सिस्टम से ये ज़ाहिर हो जाता है कि इस अलामत के मायने क्या हैं। जिस तरह ड्रामे में किरदार के मायने ड्रामिन के बातिन ही से मुतय्यन होते हैं और किरदार को समझने के लिए हमें ड्रामे से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह साख्तियात का बानी सॉसियर है, उसी तरह बशरियात पर साख्तियात का इतलाक़ लेवी स्ट्रॉस ने किया है, लेकिन साख्तियात के इतलाक़ से लेवी स्ट्रॉस को यह फ़ायदा हुआ है कि उसका नाम भी तमाम इल्मी हलकों में ज़ेर बहस आया और अब ये बताना मुश्किल है कि साख्तियात की वजह से लेवी स्ट्रॉस की शोहरत हुई या लेवी स्ट्रॉस की वजह से साख्तियात की। लेवी स्ट्रॉस 1908 में पैदा हुआ था और पेरिस ही में उसकी इब्तिदाई तालीम हुई। वो 1935 से 1939 तक ब्राज़ील की यूनिवर्सिटी सा पालो में पढ़ाता रहा और वहीं उसने इल्म बशरियात पर तहक़ीक़ात की और फिर 1959 में वो कॉलेज डी फ्रांस में समाजी इल्म बशरियात का प्रोफेसर मुकर्रर हुआ। लेवी स्ट्रॉस सॉसियर की साख्तियत से बहुत मुतासिर हुआ था, चुनांचे उसने अपनी तहक़ीक़ात में सॉसियर ही का तरीक़ेकार इख्तियार किया। 1949 में उसकी किताब क़राबतदारी का बुनियादी स्ट्रक्चर शाया हुई थी, फिर साख्तियाती बशरियात की 2 जिल्दें शाया हुईं। सवाल यह है कि लेवी स्ट्रॉस असातीर पर इस कदर गौर क्यों कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि वो ये जानना चाहता था कि इंसान के जहन का बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है। इसने खुद कहा है कि अस्तूर के साख्तियाती नमूने से ये जाहिर होता है कि इंसानी जहन का बुनियादी स्ट्रक्चर किस नौइयत का है। इस स्ट्रक्चर से ये जाहिर हो सकता है कि इंसान अपने इदारे इंस्टीट्यूशंस किस तरह तश्कील देता है, किस तरह जेवर या औजार वगैरह आर्टिफैक्ट्स बनाता है और किस तरह अपने मुख्तलिफ उलूम की हैयत की तश्कील करता है। साख्तियात की वजह से शायरी को समझने में इस कदर मदद नहीं मिली जितनी फिक्शन और असातीरी कहानियों, कथा कहानियों और दियोमालाओं को समझने में मदद मिली है। शायरी में तो लफ्ज़ों का दरोबस्त, इजहार की खूबसूरती और अंदाज़े बयान भी अहमियत रखता है, लेकिन शायरी से ज़्यादा असातीरी कहानियों में कहानी की असल अहमियत होती है। इसलिए असातीरी कहानियों का तर्जुमा करना भी निस्बतन आसान होता है। तर्जुमे में मिथ या अस्तूर की असल अहमियत ख़त्म नहीं होती, चूँकि मिथ या अस्तूर के तर्जुमे में कहानी बहरहाल रहती है। मिथ में न उसलूब अहमियत रखता है, न अल्फाज की मौसीक़ियत अहमियत रखती है, बल्कि जैसा कि खुद लेवी स्ट्रॉस ने साख्तियाती बशरियात में बयान किया है, मिथ बुनियादी नौइयत की वो ज़बान है जिसका मानियाती फंक्शन लिसानी इजहार की खुरदरी सतह के साथ चलता रहता है। लेवी स्ट्रॉस का ख्याल था कि कल्चर की बुनियादी जड़ें असातीरी कहानियों में होती हैं, चुनांचे मिथ के तज़किये से वो इंसानी जहन की असल नौइयत तक पहुँचना चाहता था। लेवी स्ट्रॉस का ख्याल था कि इंसान की समाजी ज़िंदगी की मुख्तलिफ जहतों को, यानी मज़हब, आर्ट वगैरह को इन तरीक़ों से समझा जा सकता है
जो जदीद लिसानियत की दरियाफ्तें हैं। लेवी स्ट्रॉस ने, जो साख्तियाती बशरियात का बानी है, अपनी किताब ट्रिस्टिस ट्रॉपिकीज में अपनी 3 महबूबाओं का जिक्र किया है। एक इल्म अर्जियात, दूसरी महबूबा इश्तराकियत और तीसरी तहलील नफ्सी। महबूबाओं से मुराद तख्लीकी तहरीक यानी इंस्पिरेशन के माखज़ हैं। इस तरह लेवी स्ट्रॉस ये कहना चाहता है कि ये 3 माखज़ हैं जिनसे उसके ख्यालात जन्म लेते हैं। ये नहीं कि इन ख्यालात की नौइयत क्या है, इनकी नौइयत तो साख्तियाती तरीक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है। इसकी किताबों में मौज़ूआत का इंतखाब, मिसालें, हवाले और मवाज़ने के नुकात सब गैर रिवायती हैं। इसकी किताबों के इशारिये सुरियलिज़म से मुतासिर मालूम होते हैं। इसके अबवाब के उन्वानात और असातीर की किताबों पर इसके अबवाब की तंजीम तहकीकी मुकाले की बजाय मौसीकी की कंपोजिशन मालूम होती है, जिसमें सोनेटा और फिनेले जैसे अल्फाज भी मिलते हैं। सोनेटा पियानो के ऐसे राग को कहते हैं जिसमें कई गतें होती हैं लेकिन सब गतों का सुर एक सा होता है, और फिनेले कहते हैं उस गत या धुन को जो पैरा के आखिर में बजाई जाती है। इसके अलावा ओवरट्यूर का लफ्ज़ भी आता है जो गीत के आगाज़ को कहते हैं। फिर सिम्फनी का जिक्र भी आता है जो सुरों के मेल को कहते हैं, या ऐसे ख़ास नगमे को कहते हैं जिसमें कई ख़ास गतें एक साथ होती हैं। लेवी स्ट्रॉस ने उसलूब की इस नुदरत के साथ सनाए बिदाए को भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यह है कि लेवी स्ट्रॉस में तजरीद की सलाहियत के साथ साथ सनाए बदाई की भी सलाहियत थी। वो ठोस चीज़ों को अक्सर तजरीदी ख्यालात में तब्दील कर देता है या इन्हें मजाज मुरस्सल के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेवी स्ट्रॉस कहता है कि शादी ब्याह के कवायद और क़राबतदारी के सिस्टम को एक तरह की ज़बान समझना चाहिए, ऐसी ज़बान जिसके दरमियान अफराद और ग्रोहों के बीच एक ख़ास किस्म का इबलाग कायम होता है, जिसमें ख़वातीन बीच बचाव करने वालियों की तरह होती हैं। कबीलों, ख़ानदानों, जत्थों और फ़िरक़ों के दरमियान ये ख़वातीन गर्दिश में रहती हैं, जिस तरह किसी मखसूस ग्रुप के अल्फाज गर्दिश में रहते हैं। वो अपनी किताब क़राबतदारी के बुनियादी स्ट्रक्चर में कहता है कि औरतों की गर्दिश, सर्कुलेशन, क़राबतदारी में मरकज़ी अहमियत रखती है। लेवी स्ट्रॉस के मुताबिक बोलने वालों की ज़बान एक अदद की हैसियत रखती है जो सिर्फ ये ज़ाहिर कर सकता है कि क्या पैगाम दिया जा रहा है। इसके बरक्स शादी ब्याह का निज़ाम एक नेटवर्क की हैसियत रखता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कौन से ज़राए औरतों की सर्कुलेशन के लिए खुले हुए हैं। औरतों का मकसद हयातियाती तौर पर तख्लीक़ नौ करते रहना है। लेवी स्ट्रॉस की सबसे मशहूर किताब स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। इसी में उसका मज़मून क़राबतदारी का बुनियादी स्ट्रक्चर भी शामिल है। इसके बाद इसकी 2 किताबें शाया हुई, द टोटेमिज़म और द सवेज माइंड। ये दोनों किताबें 1964 में शाया हुई थीं। इसके बाद माइथोलॉजिकीज़ की 4 जिल्दें शाया हुई। सवेज माइंड के आगाज़ ही में लेवी स्ट्रॉस कहता है कि समझना गलत है कि वैशी कौमें तजरीदी फ़िक्र की सलाहियत नहीं रखती। दूसरे माहिरीन बशरियात का भी ख्याल है कि वैशी कौमें इखलाक़ी और माबादुत तबियाती तसव्वुरात रखती हैं। लेवी स्ट्रॉस ने अपने ख्याल की तायीद में शुमाल मगरबी अमरीका की चिनूक ज़बान से मिसाल दी है। मसलन इस ख्याल को कि एक बुरे आदमी ने गरीब बच्चे को कत्ल कर डाला, चिनूक ज़बान में इस तरह अदा किया जाता है कि इंसान की खराबी ने बच्चे के इफलास को मार डाला। लेवी स्ट्रॉस की किताब सवेज माइंड से मुराद वो जहन है जो सोचने में किसी किस्म की मदद हासिल नहीं करता, मसलन तहरीर वगैरह की मदद नहीं लेता। लेवी स्ट्रॉस ने अपनी किताब माइथोलॉजिकीज़ में अमरीकी इंडियन असातीर की 800 से ज़्यादा असातीर का तज़किया किया है और दूसरी असातीर के साथ इन असातीर का मुकाबला भी किया है। असातीर का यह पूरा फैला हुआ जाल इतना बारीक है कि इन असातीर को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। एक अमरीकी माहिर बशरियात पॉल रॉडिन ने 4 असातीर का एक मजमुआ शाया किया था। रॉडिन ने यह असातीर वैशी कौमों से लेकर जमा की थी। लेवी स्ट्रॉस की राय है कि इसमें चौथी अस्तूर काबिल गौर है। यह असातीर इससे भी ज़्यादा एक दूसरे से मिली हुई हैं जितनी रॉडिन ने समझा था। लेवी स्ट्रॉस ने रॉडिन की 4 असातीर से दिलचस्पी ली है। इसमें चौथी अस्तूर दूसरी तीनों असातीर से बहुत मुख्तलिफ है, इतनी मुख्तलिफ कि पहली निगाह में ऐसा लगता है कि इस अस्तूर का ताल्लुक बाकी तीनों असातीर से कुछ नहीं है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। लेवी स्ट्रॉस ने इस अस्तूर का खुलासा भी इस तरह पेश किया है। एक यतीम बच्चा अपने बाप की तरह शिकार में अच्छी खासी महारत रखता था और गांव के आखिरी हिस्से में अपनी दादी के साथ रहता था। गांव के मुखिया की लड़की की निगाह जब इस पर पड़ी तो वो लड़के पर आशिक हो गई और सोचने लगी
वो मुझसे छेड़छाड़ करेगा या नहीं, आज़ादियाँ लेने की कोशिश करेगा या नहीं, प्यार भरे लफ्ज़ बोलेगा या नहीं। लड़का भी कुछ नापुख्तकार था, चुनांचे उसने भी लड़की से एक लफ्ज़ नहीं कहा और इधर लड़की की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कुछ बोले। इस तरह वो इश्क में मुब्तला रही, आखिरकार बीमार पड़ गई और फिर मर गई। इसकी कब्र पर मिट्टी का ढेर जमा कर दिया गया ताकि कोई चीज़ इसकी कब्र में घुस ना सके। बेटी के गम में गांव के मुखिया ने फैसला किया कि वो तमाम गांव वालों को लेकर ऐसी जगह चला जाए जो कई दिनों के फासले पर वाक़ हो। लेकिन वो यतीम लड़का गांव के मुखिया के साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसका ख्याल था कि वहाँ शिकार खासा नहीं होगा। चुनांचे मुखिया की इजाज़त से वो लड़का अपनी दादी के साथ मुखिया की लड़की की कब्र की देखभाल करने के लिए गांव ही में ठहर गया। जाने से पहले मुखिया ने अपने घर के फर्श पर मिट्टी पोत दी थी ताकि फर्श गर्म रहे। वो यतीम लड़का चूंकि अपने जानवर ज्यादा दूर लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए कुर्बो जवार ही में शिकार करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपने पुराने गांव का रुख भी नहीं किया। एक दिन वो अपने जख्मी शिकार का मामूल से ज्यादा देर तक ताक़ुब करके घर लौट रहा था कि उसने मुखिया के घर में रोशनी देखी। चुनांचे जब वो मुखिया के घर में दाखिल हुआ तो उसे मुखिया की लड़की की रूह नजर आई। तब इस रूह ने उसे बताया कि इसके मरने की असल वजह क्या थी। फिर अफसोस करती रही कि अब तक इसकी रूह वहाँ नहीं पहुँच सकी जहाँ मरने के बाद रूहें चली जाती। मुखिया की लड़की की रूह ने इससे कहा, जब तुम नींद से बोझल आंखों के साथ लेट जाओगे तो ये महसूस करोगे कि कोई चीज़ तुम्हारे जिस्म पर रेंग रही है, लेकिन ये कीड़े नहीं होंगे। तुम इन्हें मसलने की कोशिश ना करना और न जिस्म खुजाने की कोशिश करना। गर्ज ये कि रातें मुश्किल से कटती थीं, लेकिन वो यतीम लड़का आजमाइश में फिर भी कामयाब रहा। चुनांचे जो रूहें उसे तंग कर रही थीं, आखिरकार उन्होंने इस यतीम लड़के को छोड़ दिया। इस तरह वो मुखिया की लड़की को जिंदा करने में कामयाब हो गया। फिर वो मुखिया की लड़की को जिंदा करके अपने घर ले आया और इससे ब्याह कर लिया। जब इसकी इत्तला गांव वालों को मिली तो वो लौट आए। इस नौबेहाता बीवी का एक लड़का पैदा हुआ और जब वो लड़का तीर चलाने में माहिर हो गया तो उसने अपनी बीवी से कहा, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ और खासे अरसे में इस धरती पर जिंदा रहूंगा। मैं इस तरह नहीं मरूंगा जैसे तुम मर गई थी, बस मैं सीधे अपने घर जाऊंगा। इसकी बीवी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर ये दोनों भेड़िए बन गए और जमीन के अंदर रहने लगे। और जब कोई इंडियन वैशी रोजे के बाद दुआ करता तो दोनों दुआ देने के लिए जमीन के ऊपर आ जाते। लेवी स्ट्रॉस कहता है कि असातीर का तजिया एक के बाद एक नहीं होना चाहिए, बल्कि मुतालिका असातीर के ग्रुप का एक हिस्सा समझना चाहिए। रॉडेन के मजमूए की पहली अस्तूर का तर्जुमा कुछ इस तरह होगा। एक सरदार का बेटा मुक़द्दस अरवा से कुव्वत हासिल करने के लिए रोजे रखा करता था, यहाँ तक कि कुछ अरसे के बाद इन हस्तियों में और सरदार के बेटे में दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए। एक दिन सरदार के बेटे को बताया गया कि एक पार्टी लड़ाई के लिए जा रही है, लेकिन इसका जिक्र किसी से नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद सरदार के बेटे ने ये बात अपने दोस्त से कह दी। चुनांचे दोनों जाकर लड़ाई पर जाने वाली पार्टी में मिल गए। जंग में ये दोनों बड़ी बहादुरी से लड़े और जब लौटे तो इनके एजाज में बड़ी ज़ियाफत की गई। ये दोनों बड़े नामवर सिपाही बन गए और इन दोनों ने शादी कर ली और गांव से दूर अपने अपने घरों में जाकर रहने लगे। लेकिन जब कभी ये दोनों गांव में आते तो इनकी बड़ी इज्जत की जाती, क्योंकि इनके गांव वालों को बहुत फायदा पहुंचा था। एक दिन जब वो गांव वालों की खातिर किसी मुहिम पर जा रहे थे, इनका ताक़ुब किया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। मरने के बाद इनकी रूहें अपने गांव में वापस आईं तो ये देखकर उन्हें बहुत सदमा हुआ कि कोई इनको देख नहीं सकता। वो इन 4 रातों के जश्न में भी शरीक रहे जो इनकी याद में मनाया गया। सरदार के बेटे का दोस्त इतना गमगीन हुआ कि उसने फैसला किया कि हमें वापसी का रास्ता तलाश कर लेना चाहिए। मुखिया के बेटे ने कहा कि बेशक वो ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सफ़र की आजमाइशों में कामयाब हो जाएं। चुनांचे वो सफ़र करके पहली रूह के गांव में पहुंचे, जहां इनका खैर मकदम खूबसूरत मर्दों और खूबसूरत औरतों ने किया और सारी रात इनके एजाज में रक़्स होता रहा। मुखिया के बेटे ने बहरहाल अपने दोस्त को आगाह किया कि खबरदार इनके साथ रक़्स के लिए खड़े ना होना। बहरहाल ये तमाशा मुसलसल 4 रातों तक चलता रहा। फिर रक़्स की ये रातें तीनों देहातों में दोहराई गईं। हर रात रक्कासों और रक्कासाओं के साथ रक़्स में शरीक ना होना ज़्यादा कठिन लगता था। आखिरकार ये कामयाब हो गए और धरती के बनाने वाले के घर तक पहुंच गए। धरती के बनाने वाले ने पूछा, तुम लोग कहाँ रहना चाहते हो? उन्होंने कहा, अपने पुराने गांव में। चुनांचे
इनमें से हर एक दोबारा अपने गांव में पैदा हो गया। कुछ दिनों के बाद इनकी आपस में मुलाकात भी हुई। ये अभी बच्चे ही थे कि उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया, हालांकि ये अभी इतने कमसिन थे कि दूसरे लोग इन्हें अपने साथ लेकर चल रहे थे। सवाल ये है कि इन दोनों असातीर में क्या चीज़ मुश्तरक है। इन दोनों असातीर में किरदार मरते भी हैं और दोबारा पैदा भी होते हैं, लेकिन ये इश्तराक बस यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन असातीर के किरदार, इनके हालात और मूड एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। बज़ाहिर ये इख्तलाफात यूं ही से मालूम होते हैं, लेकिन अगर इनको गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि इनमें मुखालिफ पहलू और बाज़ाब्ता तनासुब यानी सिमेट्री मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।